Hello everyone, before going to start today's video, it is my request to all my subscribers, do press the bell icon so that you can get notification about my all upcoming videos. Now today's topic is ledger. Ledger is principal book of business. In today's discussion, we will learn meaning and objectives of ledger, format of ledger, accounts, opening of different type of accounts and balancing of different accounts, closing of accounts at the end of accounting year. Now, meaning and objective of ledger. What is ledger? Ledger is basically a register or a printed format, loose format, then printed in certain organizations or some few small organizations maintain ledger in printed form and in form of loose papers, and certain organizations maintain it as a register. So what is ledger? Ledger is basically a register where information related to accounts of similar nature, either it is account related to any person, item, an item of income or expenses, or thing, in thing, fixed assets or current assets will be there. Then all the items related to all the accounts related to any person, item or thing will be opened in ledger book, and we will record all transactions of similar nature in that particular ledger. तो एक जैसे हम रजिस्टर बनाएंगे, लेजर का रजिस्टर, तो उसमें डिफरेंट पेजेस पर डिफरेंट अकाउंट, अलग अलग अकाउंट खोलेंगे, सैलरी अकाउंट, वेजेस अकाउंट, रेंट अकाउंट, कमीशन अकाउंट, इंटरेस्ट अकाउंट, इस तरह से एसेट्स अकाउंट, फर्नीचर अकाउंट, मशीनरी अकाउंट, स्टॉक अकाउंट. तो जैसे परचेज अकाउंट, सेल्स अकाउंट, परचेज रिटर्न अकाउंट, सेल्स रिटर्न अकाउंट्स, कैपिटल अकाउंट, डिफरेंट टाइप ऑफ लायबिलिटीज़, बैंक अकाउंट, कैश अकाउंट, ये जितने भी तरह के अकाउंट्स जो कि हम जर्नल एंट्री करते समय रिकॉग्नाइज करते हैं, वो अकाउंट्स का एक हेड खोल देंगे. और हेड खोलने से क्या होगा? हेड खोलने से उस अकाउंट से रिलेटेड जितने भी ट्रांजेक्शन्स हुए हैं, चाहे वो डिफरेंट डेट्स पर ही क्यों ना हो, तो वो सारे ट्रांजेक्शन्स एक जगह ग्रुप में आ जाते हैं, एक हेड में आ जाते हैं. तो इससे एक फिगर एसर्टेन करने में बहुत ज़्यादा हेल्प होता है, और इसी फिगर का बाद में हम बैलेंसिंग करते हैं. यहाँ बैलेंसिंग पढ़ेंगे और उसका फिर उसका क्लोजिंग करेंगे. इट मीन्स इसका आगे फर्दर क्या ट्रीटमेंट होगा, इसको हम ट्रेडिंग एंड पीएल अकाउंट में डालेंगे या फिर इसको हम बैलेंस शीट में ले जाएंगे. ये हम क्लोजिंग के समय मैं आज इस वीडियो में पढ़ाऊँगी कि इसका आगे कैसे ट्रीटमेंट होगा, कैसे पता चलेगा. तो ट्रायल बैलेंस बनाने के पहले लेजर बनाना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है. बिना लेजर के ट्रायल बैलेंस बन ही नहीं सकता है. तो लेजर जब ट्रायल बैलेंस बनेगा तो उसके आगे का फर्दर जितने भी प्रोसेसिंग होंगे फाइनल अकाउंट्स बनाने के, ये ट्रायल बैलेंस के बाद होगा. तो लेजर इज़ अ प्रिंसिपल बुक ऑफ एनी बिजनेस. Now format of ledger is, this is the format of ledger. First, at the top and in the center of the ledger book, first the account, name of account is mentioned here,
rent account, then rent account is mentioned here, and this first 1 2 3 4, then again 1 2 3 4, 4 columns at debit side and 4 columns at credit side. Then two sides are indicated, DR and CR. DR is debit side and CR is for credit side. And date particulars, JF journal folio, amount rupee, date particulars, JF journal folio, amount rupee. This is the format. And in first date is, then in date first year is indicated, then after the month, suppose March. If any transaction is taking place on March 5th, then March 5 is indicated here. Now take an example. Suppose rent paid rupee 20,000. Then the journal entry for this transaction will be rent paid. Here rent is an item of expense, then rent account will be debited and what will be credited? Paid. It means cash is going out from the business, then cash account will be credited, rent, narration will be rent paid. And at what date? Date is in 2021 March 5th. This is the transaction on March 5th. Then in journal, this is the journal for this transaction. And on the basis of this journal, ledger will be, two heads are recognized from this journal. First is rent account and another is cash account. Then in the column of rent account, here rent is debited. Then if the ledger of rent account is opened here, then cash here. If rent is debited, then the cash will be debited in ledger to cash account. It is indicated at the debit side, and amount is indicated in amount column, and for cash account ledger will be कैश अकाउंट का भी एक लेजर हम खोल लेंगे, और कैश अकाउंट के लेजर में भी इतने ही सेम कॉलम्स होंगे. ये साइड है डेबिट का और राइट हैंड साइड इज़ फॉर क्रेडिट, डेट, पर्टिकुलर्स, JF जर्नल फोलियो, अमाउंट रुपी, डेट, particulars, journal folio, amount, then rupee. This is the format of ledger. Rent paid.
the journal entry was rent account debit to cash account. This was the journal entry. Then if cash account is opened in ledger book, then cash is credited here, then rent will be credited. Rent will be indicated at the credit side of this ledger of cash account. कैश अकाउंट का हम लेजर खोल रहे हैं, तो बाय रेंट अकाउंट. फर्स्ट ईयर वाज 2021 and the date is March 5th. Here amount is 20,000. तो ये एक फॉर्मेट है और लेजर में हम इसी तरह से एंट्री करते हैं. रेंट यहाँ डेबिट हुआ है, तो उसके रिवर्स में जो भी अकाउंट है वो रेंट का लेजर में वो जाकर डेबिट साइड में लिख दिया जाएगा. उसी तरह से यहाँ कैश क्रेडिट हुआ है, तो कैश का जब हम अकाउंट खोलेंगे तो कैश क्रेडिट हुआ है, तो उसके अपोजिट वाला जो अकाउंट है वो कैश के लेजर में जाकर क्रेडिट हो जाए, क्रेडिट साइड में लिख दिया जाएगा. तो रूल यही है, लेजर का यही रूल है. और लेफ़्ट हैंड साइड में और राइट हैंड साइड में, लेफ़्ट हैंड साइड में टू प्रीफिक्स करते हैं और राइट हैंड साइड में बाय. तो जब जब रेंट पेड होगा तो बाय करके हम लिखते जाएंगे. और यहाँ भी रेंट का पेमेंट हुआ है, तो यहाँ टू करके हम जब जब रेंट का पेमेंट होगा तो रेंट के लेजर में टू करके हम लिखते जाएंगे. तो ये तो हुआ कि कैसे हम जर्नल से लेजर में कैसे हम पोस्टिंग करते हैं. और ये हो गया फॉर्मेट. और अकाउंट, तो अकाउंट के बारे में मैंने कह दिया कि किसी भी पर्सन, आइटम या थिंग से रिलेटेड जितने भी अकाउंट जो कि हमने जर्नल करते समय किया था वो सारे अकाउंट को रिकॉग्नाइज करेंगे और उससे रिलेटेड जितने भी ट्रांजेक्शन्स हुए हैं वो सारे इसी में जब जब रेंट का पेमेंट होगा हम इसी रेंट के लेजर में ही दिखाएंगे. और कैश अकाउंट बनाएंगे तो कैश पेमेंट और कैश रिसीव्ड जितना भी होते जाएगा वो कैश अकाउंट में ही सारा हम मेंटेन करते जाएंगे, डालते जाएंगे. नाउ बैलेंसिंग. इसका बैलेंसिंग हम कैसे करेंगे? तो जैसा कि मैंने ऑलरेडी कह रखा है कि लेजर को एक बुक फॉर्मेट में, एक रजिस्टर फॉर्मेट में बनाते हैं. तो एक मंथ का रेंट का हम पेमेंट कर रहे हैं. सपोज़ हम हर मंथ में रेंट का पेमेंट करते हैं, 20,000 पेमेंट करते हैं. देन इस मंथ का मैंने पेमेंट कर रखा है, मार्च 5th को ही मैंने 20,000 का पेमेंट कर रखा है. तो इस मंथ के एंड में बैलेंसिंग करेंगे. तो बैलेंसिंग करेंगे तो कैसे हम करेंगे? तो मंथ एंड, इट मीन्स मार्च है, देन मार्च 31st. तो इसका जब हम बैलेंसिंग करेंगे तो एट द एंड ऑफ द मंथ मार्च 31st को बाय को प्रीफिक्स करके बाय बैलेंस CD कैरिड डाउन. अमाउंट यही हो जाएगा 20,000. दोनों साइड फिर हम टोटल करते हैं. इस साइड में भी 20,000 और इस साइड में भी 20,000. अब मार्च के बाद अप्रैल आएगा. इन मंथ ऑफ अप्रैल अप्रैल 1st को क्या करेंगे?
एट द बिगिनिंग ऑफ द मंथ यहाँ ये जो बैलेंस था इसी बैलेंस को यहाँ इंडिकेट करेंगे टू बैलेंस BD ब्रॉट डाउन कितना हुआ 20,000 रुपी। नाउ अगर फिर बाद में रेंट का पेमेंट हुआ इन द मंथ ऑफ अप्रैल तो वो डेट यहाँ इंडिकेट करेंगे और उसका पेमेंट यहाँ इंडिकेट करेंगे। एंड एट द एंड ऑफ अप्रैल मंथ के एंड में फिर बैलेंस CD आएगा और अप्रैल के बाद मई आएगा, तो मई के बिगिनिंग में 1 मई को फिर बैलेंस BD होगा। ये प्रोसेस कंटिन्यू होता चला जाएगा जब तक कि अकाउंटिंग ईयर का एंड नहीं होता है, तब तक ये प्रोसेस होगा। इसी तरह से इसमें भी इसी तरह से सारे जितने भी लेजर्स अकाउंट मैंने ओपन किए हैं वो सारे में उसी तरह से ये बैलेंसिंग का और टोटलिंग का और CD और BD का प्रोसेस ये चलता रहता है। अब कुछ चीज़ों को नोटिस करना और कुछ चीज़ों को रिमेंबर करना इस पॉइंट पर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वो क्या है कि जब हम क्लोजिंग करेंगे एट द एंड ऑफ अकाउंटिंग ईयर लेजर को क्लोज करते हैं, तो उस समय क्या होगा? उस समय अगर वो पर्सनल अकाउंट है, पर्सनल अकाउंट्स मीन्स आइदर या तो वो डेटर्स होंगे या तो वो क्रेडिटर्स होंगे। पर्सनल में मैं ऑलरेडी पढ़ा चुकी हूँ, नेचुरल पर्सन एंड आर्टिफिशियल पर्सन। देन सपोज मोहन ब्रदर्स इज़ अ आर्टिफिशियल पर्सन, टाटा लिमिटेड आर्टिफिशियल पर्सन, एंड राम, सोहन, दीज आर नेचुरल पर्सन्स। तो अगर इनसे या तो मैंने कुछ क्रेडिट पर परचेज कर रखा है या इनको कुछ क्रेडिट पर मैंने सेल कर रखा है, तो वैसे केस में या तो ये मेरे डेटर्स होंगे या तो मेरे क्रेडिटर्स होंगे। तो इनका जब अकाउंट हम खोलेंगे तो उस अकाउंट का बैलेंसिंग हम करके देखेंगे कि हमें उनको पे करना है या उनसे पेमेंट लेना है। तो ये बैलेंसिंग करने के बाद CD या BD जो भी फिगर आएगा उससे पता चल जाएगा कि कैसे होगा। सपोज मोहन ब्रदर्स से कैसे पता चलेगा? मोहन ब्रदर्स से कुछ आइटम मैंने परचेज किया था क्रेडिट पर, 20,000 का आइटम क्रेडिट पर परचेज किया था मोहन ब्रदर्स से। देन द जर्नल एंट्री फॉर दिस ट्रांजेक्शन, परचेजेस अकाउंट डेबिट टू मोहन ब्रदर्स अकाउंट। This is 20,000. Now इसमें से कुछ आइटम्स डिफेक्टिव निकल गए थे तो मैंने इसे परचेज को रिटर्न कर दिया। देन मोहन ब्रदर्स अकाउंट डेबिट टू परचेजेज रिटर्न्स अकाउंट।
2000 के आइटम जो हैं डिफेक्टिव निकल गए थे और मैंने इसे रिटर्न कर दिया। तो ये दो तरह के ट्रांजैक्शन जो कि मोहन ब्रदर्स से ही रिलेटेड है मेरे जर्नल एंट्री में नज़र आ रहे हैं। तो इनका हम लेजर कैसे बनाएंगे ये मैं दिखला देती हूँ। इससे लेजर बनाने से नेट फिगर का पता चल जाएगा कि हमें लेना है या देना है। सपोज ये ट्रांजैक्शन भी टू 2021 में मार्च 5 को ये ट्रांजैक्शन हुआ था और मार्च 6 को मैंने रिटर्न कर दिया। देखा कि ये तो डिफेक्टिव है तो मैंने रिटर्न कर दिया 2000 का इसमें से माल। तो इसका हम लोग लेज़र कैसे करेंगे ये यहाँ पर हम लोग समझ लेते हैं कि इसका लेज़र कैसे होगा इसी फॉर्मेट में। मोहन ब्रदर्स अकाउंट, इसको सेंटर में लिख देंगे और मोहन ब्रदर्स यहाँ क्रेडिट हो रहा है तो इसके सिया साइड में परचेजेस जाएगा बाई, ये कब हुआ है मार्च 5 को, बाई परचेजेस अकाउंट 20,000। अब अगेन यहाँ मोहन ब्रदर्स यहाँ डेबिट हो रहा है तो मोहन ब्रदर्स अकाउंट मैंने खोल रखा है तो इसके डेबिट साइड में जाएंगे और यहाँ पर लिखेंगे मार्च 6 को लिखेंगे टू परचेजेस रिटर्न्स अकाउंट। तो अब हम क्या देख रहे हैं, इधर 20,000 है और इधर 2,000 है, देन इधर का कम है, इधर अधिक है और इधर कम है। तो बैलेंस सीडी मेरा किधर निकलेगा, जिधर का साइड कम होता है उधर बैलेंस सीडी निकालते हैं। टू बैलेंस सीडी कितना 18,000, देन टोटलिंग करते हैं टोटल 20,000 और इधर भी टोटल हो गया 20,000। अब सीडी इस साइड आया है, डेबिट साइड में सीडी आया है तो इसी सीडी ये कब आया है, सीडी कब निकालते हैं एट द एंड ऑफ द मंथ, देन मार्च 31, और यही फिगर एट द बिगनिंग ऑफ नेक्स्ट मंथ इट मीन्स अप्रैल 1 को ये बीडी बन के चला जाएगा। तो बाय बैलेंस बीडी ब्राउट डाउन 18,000। इट मीन्स मोहन ब्रदर्स का क्या है, क्रेडिट बैलेंस है। क्रेडिट बैलेंस मीन्स मोहन ब्रदर इज creditor. Here purchases goods from Mohan brother on credit, then Mohan brother is creditor for what amount, 2000 का मैंने रिटर्न कर दिया। तो अब कितना क्रेडिटर है, मतलब कितना हमें पे करना है, बिजनेस कितना पे करेगा, 18,000 ही पे करेगा। तो ये क्लोजिंग हम करेंगे तो इस तरह से
क्लोजिंग फिगर आएगा। तो जब हम सन्ड्री क्रेडिटर्स बनाएंगे तो उसमें मोहन ब्रदर्स जाएंगे, तो मोहन ब्रदर्स के आगे 18,000 वहाँ नोट किया जाएगा। तो ये तो हुआ कि पर्सनल अकाउंट का बैलेंसिंग और क्लोजिंग कैसे करते हैं, यहाँ पर हमने समझ लिया। अब रियल अकाउंट, रियल अकाउंट ऑलरेडी मैं पढ़ा चुकी हूँ। टेंजिबल रियल अकाउंट एंड इंटेंजिबल रियल अकाउंट। टेंजिबल रियल अकाउंट, लैंड, बिल्डिंग, फर्नीचर, दीज आर टेंजिबल। इंटेंजिबल, गुडविल, पेटेंट, कॉपीराइट, इंटेंजिबल रियल अकाउंट्स। तो इन ये सब का भी बैलेंसिंग एंड क्लोजिंग ऑफ अकाउंट लाइकवाइज इसी तरह से होता है। लेकिन गुड्स अकाउंट, गुड्स मीन्स गुड्स में क्या क्या आता है, तो केवल गुड्स अकाउंट हम नहीं खोलते हैं। जब हम जर्नल बनाते हैं और लेजर जब बनाते हैं या सब्सिडरी बुक्स बनाते हैं, तो उस समय हम क्या बनाते हैं, गुड्स ना बनाकर परचेजेज अकाउंट, सेल्स अकाउंट, परचेजेज रिटर्न्स अकाउंट एंड सेल्स रिटर्न्स अकाउंट, ये 4 तरह का अकाउंट हम बनाते हैं। तो जब इसका बैलेंसिंग हर मंथ में बैलेंसिंग तो इसी तरह से होगा, लेकिन जब उसका हम क्लोजिंग करने लगेंगे तो बैलेंस बीडी हम ना करके हम क्या करेंगे, जब हम उसका क्लोजिंग करेंगे तो लिखेंगे बैलेंस ट्रांसफ़र टू ट्रेडिंग अकाउंट। परचेजेज अकाउंट खोलेंगे तो एट द एंड ऑफ अकाउंटिंग ईयर हम क्या करेंगे, बैलेंस ट्रांसफ़र टू ट्रेडिंग अकाउंट। सेल्स अकाउंट का भी बैलेंस ट्रांसफ़र टू ट्रेडिंग अकाउंट। इसी तरह से परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न, ये जो हुआ गुड्स से रिलेटेड अकाउंट हुए, तो इनको हमको अल्टीमेटली ट्रेडिंग अकाउंट में दिखलाना होता है, तो हम लिखेंगे बैलेंस ट्रांसफ़र टू ट्रेडिंग अकाउंट। अदरवाइज ड्यूरिंग द होल अकाउंटिंग ईयर, अगर हम मंथ की बात करें तो हर एक मंथ में, एक मंथ से दूसरे मंथ में अगर हम जा रहे हैं तो बैलेंसिंग करेंगे और नेक्स्ट मंथ में वो बैलेंस लाएंगे, तो इसी तरह से सीडी और बीडी इसी तरह से चलता रहेगा। लेकिन मैं यहाँ बात कर रही हूँ अकाउंटिंग ईयर क्लोज होने पर हम क्या करते हैं, तो क्लोज होने पर अगर गुड्स से यानी परचेजेस, सेल्स, परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न, इससे रिलेटेड आइटम है तो ये ट्रांसफ़र टू ट्रेडिंग अकाउंट कर देंगे। उसी तरह से नॉमिनल अकाउंट, व्हाट इज़ नॉमिनल अकाउंट, ऑल items of expenses and incomes, profits, gains, these are nominal accounts. And balance, closing balance, it means closing figure at the end of the accounting year, हम इसको क्या करेंगे, nominal account का जितना भी होगा उसको ट्रांसफ़र कर देंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। अदरवाइज अगर ड्यूरिंग द ईयर की बात करें, एक मंथ से दूसरे मंथ में हम जाने की बात करें, तो बैलेंसिंग इसी तरह से चलता रहेगा। लेकिन जहाँ हम अकाउंट क्लोज करेंगे या फिर अकाउंटिंग ईयर ख़त्म हो रहा है और हम अपना बुक्स ऑफ अकाउंट क्लोज कर रहे हैं, तो उस समय नॉमिनल अकाउंट्स के जितने भी फिगर होंगे, जितने हेड्स के वो बैलेंस होते हैं, लास्ट बैलेंस, वो ट्रांसफ़र हम कर देते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, सो दैट हम पता कर सकें कि नेट प्रॉफिट हुआ है या नेट लॉस हुआ है। दैट्स ऑल फॉर टुडे। नाउ थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियोस, and in next video I will discuss trial balance. Till then, keep learning, watch my videos, share and subscribe and press the bell icon. Till then, bye bye.